अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये चैप्टर टोटली साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में है। कुछ ब्रीफली एक्सप्लेनेशंस है हमारे पास। पहले आप लोग इसकी रीडिंग सुन लो। द मॉडर्न एज is the age of science and technology. The influence of modern technology can easily be seen in every walk of life, and much of human happiness depends on the way in which man makes use of the vast power that science has placed in his hands. In fact, it is impossible to survive in the absence of the various discoveries and inventions. The influence of modern technology can easily be seen and felt in our daily life. Think of electricity and the aeroplanes, the railways, the motor cars, the means of communication which have become indispensable in our daily life. These inventions have brought happiness and comforts for us. Let's take the example of electricity. This great discovery has aided greatly to the joy and comfort of life. Electronic machines have largely supplanted manual labor and are producing better necessaries of life in great abundance at a much lower cost production. This discovery has not only added to our physical comforts but also has played a great role in our mental and intellectual development. Latest inventions have made our domestic life very comfortable and easy. Now, our females at homes can enjoy the benefits of modern technology in the form of refrigerator, ovens, juicers, blenders, freezers, and washing machines. Traveling has become very fast and comfortable. Nowadays, we can travel by trains, motor cars, buses, motorbikes, and aeroplanes. Aeroplanes have brought a revolution in the field of traveling. They are the fastest means of transportation in modern era. These modern means of traveling have helped us in covering the distance of months in days, even in hours. We can also see that latest technology has revolutionized the means of communication. We can talk with our relatives and friends thousands of miles away from us with the help of modern scientific devices like telephone, cell phone, and computer. Due to these latest devices, our world has become a global village. If anything important happens in any part of the world, the news can be conveyed within seconds with the help of radio, television, or social media. The modern technology has also helped mankind to fight against fatal diseases. Once there was a time when certain diseases were considered to be incurable, but now with the help of modern technology, researchers have discovered different medicines which can cure different diseases. Even in the field of surgery, the transplantation of heart, liver, and kidney has also become possible because of tremendous achievements in the field of medical sciences. With advancements in telecommunication technology, distance education programs have rapidly expanded. Distance education is inevitably linked to media and technology. The distance education offers flexible learning through both online and print-based materials. Distance education courses are designed to provide one of the study options to students and others who are unable to attend scheduled classes at campus. With the fast growth of the internet and the fast progress of communication, the World Wide Web is a new medium of distance learning. With the enormous number of resources available online and the increasing number of people who have access to the internet, web-based instruction is considered one of the fastest media for teaching and learning. Apart from it, computer conferencing is another option of learning and sharing information. It allows students and instructors to interact via a computer network more easily and effectively. This interaction can be through email, messages, file transfer, chat rooms, and real audio and video exchange. With the fast progress in computer technology, computer conferencing is taking most important place in teaching learning process. There is a negative side of modern technology as well, and that is the invention of hydrogen bomb and atom bomb.
which have caused new fears among the people. As we know that in August 1945, America dropped atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki, Japan, which resulted in killing of thousands of people and destruction of property at large scale. The impact of the destruction left the people of the world stunned and confused. The scientists were also bewildered by the power which science had placed in the hands of people. We can say that modern age is the age of comforts and destruction as well. It depends upon the usage of modern discoveries and inventions. We need to use them for the welfare and betterment of humanity rather than using them for the destruction, cause, and uncertainty. ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे पास टोटल साइंस के बारे में है, ठीक है। जो हमारे पास नए टेक्नोलॉजी आए हैं, जो नया इन्वेंशंस आया है साइंस की वजह से, ठीक है, दुनिया में, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आई है, क्या क्या फ़ायदे हमें पहुंचा है, ठीक है, और क्या क्या नुकसानात हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इस चैप्टर में हमारे पास हमारे लिए ये चीज़ डिस्कस किया गया है कि साइंस जो है, साइंस की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, बहुत ज़्यादा असरात है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। इसमें जो है मॉडर्न साइंस जो है, सबसे पहले जो काम हमारे लिए आसान हुआ है वो ट्रांसपोर्ट है। जो पुराने ज़माने में सबसे मुश्किल काम था ट्रांसपोर्ट, किसी मरीज़ को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना या हॉस्पिटल पहुंचाना, या कोई ज़रूरी काम से कोई सफ़र पर जाते थे तो दिन लगते थे उसमें, ठीक है, महीने लगते थे या हफ्ते लगते थे। अब जो है हमें घंटे भी लग सकते हैं अगर हम बाय एयर जाए, ठीक है, या बाय ट्रेन जाए, ठीक है, या बाय लैंड, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट हमारे लिए बहुत आसान हुआ है। उसके साथ साथ हमारे पास जो घरेलू एक्सेसरीज़ है, जो घर में हमारे पास सामान है, जो हमारी औरतें यूज़ करते हैं, तो घर के काम भी उनके लिए काफ़ी आसान हुआ है। यहाँ पे जो एग्जांपल हमें दिया गया है रेफ्रिजरेटर का, ओवन्स, जूसर्स, ब्लेंडर्स, फ्रीजर्स एंड वॉशिंग मशीन्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है ट्रैवलिंग का, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद जो है ग्लोबलाइजेशन के बारे में है। ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरी दुनिया एक आखिर में आके एक छोटी सी विलेज की तरह बन जाता है, एक छोटी सी गांव की तरह बन जाता है, जहाँ कुछ भी हो तो एक बंदे को कुछ हो जाए तो सबको पता चल जाता है, ठीक है। तो ये जो है असल में ये चीज़ मीडिया की वजह से हुआ है। असल में मीडिया का इन्फ्लुएंस है इसमें। और आजकल जो हमारे पास सोशल मीडिया है, टेलीविज़न है, रेडियो है। पहले रेडियो और टेलीविज़न बहुत बड़ा सोर्स हुआ करता था, अब सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू जो है हमें हर चीज़ का दुनिया में, पूरे ग्लोब में हमें आसानी से पता चल जाता है। इसकी एग्जांपल आप ये हमारे पास अभी जो क्राइसिस चल रही है, कोरोना वायरस, ये जो डिजीज़ चल रही है दुनिया में, इसके सारे अपडेट्स हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चल जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये सूरज ग्रहण जब होने वाला होता है या चांद ग्रहण होने वाला होता है, उसकी ख़बर हमें कुछ दिनों या कुछ हफ्तों पहले न्यूज़ के थ्रू या साइंटिस्ट के थ्रू हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो ये भी साइंस की एक फ़ायदा है जो हमें पहुंचती है। नेक्स्ट जो है बीमारियों के बारे में कहा जाता है। मेडिकल इम्प्रूवमेंट जो साइंस की वजह से हुआ है, ऐसी बीमारियां जिससे जो है पहले लोग मरते थे, अब जो है उन्हें आसानी से इलाज किया जा सकता है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे इलाज होते हैं जो काफ़ी महंगे भी होते हैं। अभी भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन बीमारियों को इलाज करने से मतलब माजूर है, वो जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, पैसे की वजह से। उसके बाद जो है कहा जाता है कि नेक्स्ट कॉन्फ्रेंसिंग, हमारे पास डिस्टेंस एजुकेशन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है जो आजकल जो है इस क्राइसिस के दौरान सबसे ज़्यादा ये चीज़ चल रहा है, जो है डिस्टेंस एजुकेशन। मतलब स्टूडेंट्स, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हो, कॉलेज के हो या यूनिवर्सिटी के हो, इन दिनों में सब जो है डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू ही आगे चल रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती है उनकी, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। मुख्तलिफ ऐसे ऐप्स हैं, जैसे हमारे पास जूम है, व्हाट्सएप है, ठीक है, मैसेंजर है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिनके थ्रू ऑनलाइन क्लासेस होती है स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में। तो ये सब जो है डिस्टेंस एजुकेशन जो है इनको कहा जाता है, और ये भी साइंस के फ़ायदे में से है। लेकिन इसका भी एक नुकसान ये है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास
की एक्सेस होगी, इंटरनेट एक्सेस होगा, कुछ लोग स्टूडेंट्स के पास नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट आखिर में जो है साइंस के कुछ नुकसानात भी बताया जाता है कि साइंटिस्ट जब अच्छी चीज़ें वो बनाते थे, उन्हें ये नहीं पता था कि हर चीज़ का एक नेगेटिव यूज़ भी होता है। उनको चाहिए था कि पहले उस नेगेटिव यूज़ के बारे में सबको बताए और सबको समझाए कि उसे नेगेटिवली यूज़ नहीं करना चाहिए। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास वेपन्स है, ठीक है। ये वेपन्स जो आजकल बनते हैं, ये एटम बम और हाइड्रोजन बम, ये इन दोनों की वजह से पूरी दुनिया में जो खौफ मतलब है अभी भी कि किसी भी मुल्क के पास अगर ये दोनों बम होता है तो वो पावरफुल हो जाता है, ठीक है, और उस मुल्क से सब डरने लगते हैं। तो ये जो है असल में साइंस के नुकसानात में से है, जो 1945 में, या ये हिसाब सबको पता है कि जापान के 2 शहरों में अमेरिका ने जो एटम बम डाला था, ठीक है, जिसकी वजह से हज़ारों लोग मरे थे। अभी तक जो है उसके असरात है, अभी भी ऐसे उनकी ज़मीन जो है ज़रख़ेज़ नहीं है, ठीक है, उनकी ज़मीन में आसानी से कुछ उगता नहीं है। ये सब उस केमिकल्स की वजह से है जो इन बम के ज़रिए यूज़ किया गया था। तो दुनिया जो है, अगर हम कहें कि दुनिया कंफर्ट में जी रही है साइंस की वजह से, तो दूसरी तरफ जो है दुनिया जो है तबाही की तरफ भी जा रही है, ठीक है। हमारे लोग, इंसान जो है पूरी दुनिया में वो खौफ में भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इसलिए जो है उनके लिए ये चीज़ मुश्किल हो रहा है। तो साइंस के फ़ायदे के साथ साथ साइंस के नुकसानात भी होती है पूरी दुनिया में। थैंक यू।